Hello everyone. Our today's new topic is bioremediation. This is the topic which is important for the graduation and master's student in environmental biotech. And this is equally important for the DBT JRF. So we will start the topic with the definition and meaning of bioremediation. As you can see here, bioremediation is made up of two words, bio and remediation. Means we use in this technique we use a living organism for the treatment of pollutants. So this is the technique which we are using recently for the cleaning of environment, and in this technique we use a living organism to clean the pollutants from air, water and soil. So bioremediation is the technique which we are using for the cleaning of pollutant from soil, water and air. So this is the definition of bioremediation, and this is the advanced technique for the environment cleaning. Now we will see some other things about the bioremediation. These are some other definition of bioremediation, because you can also use these PowerPoint for the preparation of your notes, and you can write down the definition of bioremediation by using these PPTs. Okay. As I told you, bioremediation is the process in which we use a living organism to remove the pollutants, and these living organism may be fungi, algae and bacteria and plant also. Now we will see the types of bioremediation. Types of bioremediation. Bioremediation is of two types. First, in situ bioremediation and ex situ bioremediation. In situ bioremediation is the remediation in which we do the treatment on site, or you can also say that on site bioremediation. In situ bioremediation is also known as the on site bioremediation. On site bioremediation. In this type of bioremediation, we treat the soil, water on that site where it is present, और यू कैन से कि जहां पर भी कोई पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, चाहे वो सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, हम उस पॉल्यूटेंट को वहीं पर ट्रीट करते हैं. यानी कि कोई पॉन्ड है जिसका वाटर पॉल्यूटेड है, हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं. सपोज कि कोई पॉन्ड है और इसका वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है, तो हम इस वाटर को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो वी विल नॉट transport this water from the site. Okay, and we will do the treatment of this pond water here on site. On site treatment जब हम करते हैं तो this is called in situ bioremediation. Okay, on site हमने इस pond को जब treat किया तो इसे हम बोलेंगे in situ bioremediation. Next is ex situ bioremediation. ex situ bioremediation में हम जो भी pollutant है, चाहे वो वाटर में है, सॉइल में है, तो हम उस पॉल्यूटेंट को या उस पॉल्यूटेड एरिया से सॉइल को कलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट पर. लाइक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है एग्जाम्पल में, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सिटी का पूरा सीवेज जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं. तो दैट इज द एक्स सिटू टाइप ऑफ बायोरिमेडिएशन, जिसमें हम पॉल्यूटेड सब्सटेंस को साइट से ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट पर लेकर जाते हैं और वहां पर ट्रीट करते हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन सिटू बायोरिमेडिएशन एंड एक्स सिटू बायोरिमेडिएशन. इन सिटू बायोरिमेडिएशन जब हम ऑन साइट करते हैं ट्रीटमेंट जहां पर वो प्रेजेंट था ऑलरेडी, और एक्स सिटू में जब हम जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू बायोरिमेडिएशन. यू गॉट इट? ओके, तो नेक्स्ट we will see the type of in situ bioremediation. In situ bioremediation को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रिंसिक एंड इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन. इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन का मतलब है कि जब वहां पर नेचुरली कोई बायोरिमेडिएशन कंडीशन हो रही है, जनरेट हो गई है. सपोज कि ये कोई पॉल्यूटेड सॉइल एरिया है, या हम कह सकते हैं कोई पॉल्यूटेड पॉन्ड है, तो हम यहाँ पर केवल देखते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स अवेलेबल है. वाटर इज पॉल्यूटेड, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर ही इस साइट पर ऑलरेडी कुछ ऐसे प्लांट्स और ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं जो इस पॉन्ड के में जो वाटर प्रेजेंट है उसको ट्रीट कर सकते हैं और
ये जो वाटर है ये फिर से पोल्यूटेड सब्सटेंसेस से फ्री हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन। इन दिस काइंड ऑफ बायोरिमेडिएशन हमने कुछ भी अपनी तरफ से अप्लाई नहीं किया है, नेचुरली ही जो साइट पर पोल्यूशन हुआ वहां पर उस साइट पर ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रोब्स या प्लांट ने वहां उस पॉल्यूटेड वाटर को या उस पॉल्यूटेड सॉइल को ट्रीट कर दिया है। तो दैट इज द इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन, यानी कि नेचुरली होने वाला बायोरिमेडिएशन जिसमें हमारा कोई भी एफर्ट नहीं लगा है। ओके, नेक्स्ट इज इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन। इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन वो रिमेडिएशन होता है जिसमें हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, यानी कि यही इसी पॉन्ड का एग्जांपल हम लेते हैं। इसी पॉन्ड में जब वाटर पॉल्यूटेड हो चुका था तो हमने कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने आप से इंट्रोड्यूस किए या कुछ प्लांट्स ग्रो किए इसके आसपास, इस पॉन्ड के आसपास कुछ हमने प्लांट ग्रो कर दिए हैं, और या फिर कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पर जो अब इस पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट करेंगे। या ऐसा ही किसी सॉइल के लिए भी समझ सकते हैं हम, कोई एरिया है पर्टिकुलर एरिया, वहां पर हमने कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस किए या कोई प्लांट ग्रो किए जिससे कि वहां पर जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस अवेलेबल थे वो अब इनॉक्यूस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन इज, इंट्रिंसिक जब होगा जबकि उसमें कोई हमने इंटरफेयर ना किया हो, यानी कि कोई भी अपना एफर्ट ना डाला हो, नेचुरली अवेलेबल कंडीशंस जो भी हैं उनसे ही वो ट्रीट हो गया है वहां पर जो पोल्यूशन था। लेकिन इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन में हम क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, हम कुछ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वहां पर जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस थी वो इनॉक्यूस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज द इंजीनियर्ड एंड इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द ex situ bioremediation। ex situ bioremediation में फर्दर दो टाइप है, स्लरी फेज एंड सॉलिड फेज। स्लरी फेज जो बायोरिमेडिएशन है इसमें हम जो पर्टिकुलर एरिया में कोई सब्सटेंसेस हैं जो पॉल्यूटेड है, जो पर्टिकुलर एरिया का वाटर है, सपोज वो पॉल्यूटेड हो चुका है और उस पॉल्यूटेड वाटर को हमें ट्रीट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दिस वाटर और सॉइल, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वाटर हो सकता है और सॉइल भी हो सकती है, जो कि कैसी है, पोल्यूटेड है। कैसी है ये, पोल्यूटेड सॉइल और पोल्यूटेड वाटर है। इस पोल्यूटेड सॉइल और वाटर को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर हम इसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम इसकी एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी में क्या करेंगे, हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर के साथ जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस है उसको मिक्स करेंगे और एक स्लरी, एज यू ऑल नो कि स्लरी जो है वो एक ऐसा मिक्सचर, इसमें वाटर की एक सफिशिएंट अमाउंट होती है। तो हम एक ऐसी स्लरी बनाएंगे जिसमें वाटर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्या क्या प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। ओके, some other kind of nutrients we can also provide here for the growth of माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से, सपोज कि हमने माना यहाँ वाटर और सॉइल जो थे वो पॉल्यूटेड थे, इसको हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया और एक ऐसे टैंक में कलेक्ट कर लिया जहां पर हम इसकी स्लरी बनाएंगे, वाटर के साथ हम इसकी स्लरी बनाएंगे और इसके बाद हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही, या फिर इसके अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर देंगे जो क्या करेगा, इसके अंदर जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस है उनको डिग्रेडेशन करेगा। इसके लिए समटाइम्स वी नीड सम अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ कार्बन सोर्सेज, कुछ नाइट्रोजन सोर्सेज भी हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो तब हम इसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं। अदरवाइज तो वाटर प्लस माइक्रोऑर्गेनिज्म हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस थी, वाटर था, सॉइल थे, वो ट्रीट हो गया है। नेक्स्ट जो सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज बायोरिमेडिएशन में हम क्या करते हैं, कोई स्लरी नहीं बनाते, वाटर को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो भी कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक ऐसी कोई साइट बनाते हैं, कोई टैंक बनाते हैं या कोई पिट बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ उसे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से वो जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाए। किसमें अंदर, इनॉक्यूस सब्सटेंसेस, मींस जो लेस हार्मफुल सब्सटेंस हो उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन इसमें हम कोई भी वाटर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसके अंदर से केवल हम वो एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाए पॉल्यूटेड सब्सटेंस। इसकी फर्दर कुछ टेक्निक्स है, बायोपिलिंग, लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग, बायोफिल्टर। ओके,
Now we will see the in situ bioremediation in detail. As I explained you before in last slide कि इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन कैसा रिमेडिएशन है जिसमें हम कुछ भी अपना इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपने एफर्ट नहीं लगाते. इट इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. किसका नेचुरल रिडक्शन है ये? पॉल्यूटेंट्स का. जो इंजीनियर्ड इन सिटू बायोरिमेडिएशन है इसके अंदर हम कोई अप्रोच अपनी लगाते हैं जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस या इनोकस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ वी विल सी द टेक्निक्स ऑफ इन सिटू बायोरिमेडिएशन. हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो हमारा इन सिटू बायोरिमेडिएशन में इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन है उसमें फर्दर कुछ टेक्निक्स थी बायोवेंटिंग, बायोस्लर्पिंग एंड बायोस्पार्जिंग. दीज आर द टेक्निक्स फॉर इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन. इंजीनियर्ड बायोरिमेडिएशन के कुछ टाइप्स हैं, उसमें जो हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. बायोवेंटिंग. फर्स्ट वी विल सी द बायोवेंटिंग. वेंटिंग में हम क्या करते हैं? एयर फ्लो प्रोवाइड कराते हैं ऑन साइट ही, जहां पर हमारा कोई भी कंटामिनेंट प्रेजेंट है, पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वहीं पर हम एयर प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर ऑलरेडी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है और वो ग्रो करके नेचुरली वहां पर पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस का डिग्रेडेशन कर देते हैं. दिस इज द बायोवेंटिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? केवल एयर फ्लो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिल जाती है और वो अच्छे से फ्लोरिश करते हैं, ग्रो करते हैं और नेचुरली वहां पर जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस थे वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनोकस सब्सटेंसेस में. अब नेक्स्ट है बायोस्लर्पिंग. बायोस्लर्पिंग में हम करते क्या है कि जो वैक्यूम क्रिएट करके वहां उस पर्टिकुलर साइट से डी वाटरिंग कर देते हैं, यानी कि जिस भी साइट पर पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वहां पर जाकर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वहां से डी वाटरिंग कर देते हैं, यानी कि वाटर को वहां से हटा देते हैं. ये जो बायोस्लर्पिंग टेक्निक है मेनली हाइड्रोकार्बन कंटामिनेटेड साइट के पर अप्लाई की जाती है, जहां पर हाइड्रोकार्बन का कंटामिनेशन होता है, मीन्स की पेट्रोल इन सब का जो कंटामिनेशन होता है, जो पेट्रोल से मिलने वाले पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस है उनका जहां पर कंटामिनेशन होता है वहां पर हम इस टेक्निक को मेनली यूज करते हैं, बायोस्लर्पिंग को. नेक्स्ट है बायोस्पार्जिंग. बायोस्पार्जिंग टेक्निक में हम करते क्या है? ये इट इज क्वाइट सिमिलर टू द बायोवेंटिंग. बायोवेंटिंग की तरह से ये इस टेक्निक में हम करते क्या है कि एयर तो इंट्रोड्यूस करते हैं, बट वेयर वी विल इंट्रोड्यूस द एयर? वी विल इंट्रोड्यूस द एयर इन सैचुरेटेड जोन. आपने अभी देखा होगा जब बायोवेंटिंग हम देख रहे थे तो वहां पर एक वर्ड था अनसैचुरेटेड जोन, और बायोस्पार्जिंग में एक टर्म है सैचुरेटेड जोन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड जोन एंड अनसैचुरेटेड जोन? जो सैचुरेटेड जोन है आपने देखा होगा, आई डोंट नो कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ब्रीफ में थोड़ा मैं बता देती हूँ. ये सॉइल है जिसे हम सरफेस लेयर बोलते हैं, ये एक सरफेस लेयर है, ठीक है. इसके नीचे आती है हमारी जो सरफेस लेयर है, इसके बीच में एक और जोन आती है, इसे अभी हम नहीं देखते हैं, अभी हमारा कंसर्न इसको समझने का नहीं है. नेक्स्ट हमारी आती है अनसैचुरेटेड जोन. अनसैचुरेटेड जोन है ये. अनसैचुरेटेड जोन में कोई वाटर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वाटर फिलिंग नहीं होती है, और इसके नीचे हमारी सपोज कि यहाँ से यहाँ तक हमारी अनसैचुरेटेड जोन हो गई. इसके नीचे हमारी आती है सैचुरेटेड जोन, जिसके अंदर वाटर फ्लो काफी होता है, ठीक है. यानी कि ये सॉइल का हम देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमारी सरफेस सॉइल हो गई, इसके नीचे हमारी वेसिडोज करके जोन होती है जहां पर कॉन्क्रीट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. फिर नेक्स्ट आती है हमारी अनसैचुरेटेड जोन, जहां पर वाटर फ्लो होता तो है लेकिन कम होता है. नेक्स्ट है हमारी सैचुरेटेड जोन. सैचुरेटेड जोन में हमारा जो वाटर फ्लो होता है वो काफी हद तक होता है, ये है हमारी सैचुरेटेड जोन, ठीक है. तो बायोवेंटिंग और बायोस्पार्जिंग में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो बायोवेंटिंग है हम उसमें भी एयर फ्लो कराते हैं और बायोस्पार्जिंग में भी हम एयर फ्लो कराते हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज
बायो वेंटिंग में हम अनसैचुरेटेड जोन में एयर फ्लो प्रोवाइड कराते हैं, और हम जो बायो स्पार्जिंग है उसमें हम सैचुरेटेड जोन में एयर फ्लो प्रोवाइड कराते हैं, और जिसकी वजह से जितना भी वहां पर पॉल्यूटेड सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड जोन में प्रमोट हो जाते हैं। यानी कि जब हम यहाँ पर एयर फ्लो कराते हैं, बायोस्पार्जिंग में हमने यहाँ पर एयर फ्लो कराया, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे ये वोलेटाइल होंगे, और ये क्या करेंगे, सैचुरेटेड जोन में जाकर पुश कर दिए जाएंगे, और वहां पर इनका डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो वाटर वाला जो एरिया है, जो वाटर जहां हम जो ग्राउंड वाटर जहां से यूज हो रहा है वहां पर पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस नहीं बचेंगे। दूसरा, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी हमने इजीली बढ़ा सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आसानी से ये पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस हम डिग्रेड कर सकते हैं, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 टेक्निक पढ़ी, बायोवेंटिंग, बायोस्लर्पिंग और बायोस्पार्जिंग। बायोवेंटिंग में हम एयर प्रोवाइड करा रहे हैं, बायोस्पार्जिंग में भी हम एयर प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन बायोवेंटिंग में अनसैचुरेटेड जोन में प्रोवाइड करा रहे हैं, और बायोस्पार्जिंग में हम सैचुरेटेड जोन में प्रोवाइड करा रहे हैं। बायोस्लर्पिंग में हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके डी वाटरिंग कर देते हैं, और उनको पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड होने के लिए छोड़ देते हैं नेचुरली, या फिर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Next technique is biostimulation. These techniques are also related to the engineered bioremediation. Engineered bioremediation की ही ये टेक्निक है, engineered in situ bioremediation. First we will see the biostimulation. Biostimulation में हम क्या करते हैं, कोई भी साइट है जो कंटामिनेटेड है, जहां पर पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वहां पर हम क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वहां पर सपोज कोई बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि इन पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर सकता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट नहीं है जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन को सूटेबल बना देते हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वी कैन लुक है, सपोज कि ये कोई साइट है जहां पर हमारा पॉल्यूशन प्रेजेंट है, पॉल्यूटेड एरिया है ये, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है वो, यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो इसके पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस को डिग्रेड तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर वो इन्वायरमेंटल सिचुएशन नहीं है। तो हमने क्या किया, इन्वायरमेंटल सिचुएशन को मॉड्यूलेट कर दिया। कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं हम, बाय इंट्रोड्यूसिंग द एयर को इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जिससे कि इनके ग्रोथ सबको सपोर्ट मिले और ये अच्छे से ग्रो कर सके, और यहाँ पर जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस है उसको डिग्रेड कर सकें। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, दिस कैन बी डन बाय एडिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं बायोस्टिमुलेशन में, जब हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, उन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, और वो क्या करेंगे, नेचुरली ही बायो रिमेडिएट करेंगे उस एरिया को। नेक्स्ट इज बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, कुछ जैसे कि स्टिमुलेशन में हमने ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट को मॉड्यूलेट किया, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, ऑगमेंटेशन में जो नेचुरली प्रेजेंट माइक्रोब्स था, कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर पहले से ही प्रेजेंट था, लेकिन इसकी ग्रोथ फिर भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इन्वायरमेंट भी सूटेबल है, तो हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए कुछ सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। हमने कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर माइक्रोब्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जब अच्छे से फ्लोरिश करेंगे, ये वाले बैक्टीरिया अच्छे से फ्लोरिश करेंगे, और क्या करेंगे, अब नेचुरली वहां पर बायोरिमेडिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि बायोस्टिमुलेशन में हम इन्वायरमेंट को मॉड्यूलेट कर रहे थे नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया की फास्ट ग्रोथ के लिए, लेकिन बायो ऑगमेंटेशन में हम क्या करते हैं,
उन ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन करा देते हैं उस पर्टिकुलर साइट पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट जो माइक्रोब्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, बायोरिमेडिएशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वहां पर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द engineered in situ bioremediation. Next we will see ex situ bioremediation. Ex situ bioremediation में हमने क्या पढ़ा था कि जो ये वो बायोरिमेडिएशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस है उसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट प्लांट पर. ट्रांसपोर्ट टू ट्रीटमेंट प्लांट. और वहां पर हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. वहां पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हमारे पास मेथड आता है सॉलिड फेज ट्रीटमेंट. सॉलिड फेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हम सब्सटेंस लेकर आए हैं उसको एक पाइल में डाल देते हैं और वहां पर हम एयर इंट्रोड्यूस कराते हैं पाइप से. सपोज कि एक पाइल के अंदर हमने अपना सब्सटेंस इकट्ठा कर दिया, टैंक के अंदर पाइल के अंदर कलेक्ट कर दिया और वहां पर हम पाइप से एयर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट थे वो डिग्रेडेशन उनका स्टार्ट हो जाता है. और टाइम टू टाइम एयर इंट्रोड्यूस कराते हैं, एयर पुलिंग भी कर सकते हैं, हम एयर को इसमें से निकाल भी सकते हैं, यानी कि एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों कंडीशन हम आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम कोई भी वाटर इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं. As you can see here is solid phase bioremediation is an ex situ technology in which the contaminated soil is excavated and placed into piles. It is also include organic waste like leaves, animal manures and agriculture waste. इस तरह के waste को हम solid phase treatment से treat कर सकते हैं. जो bacterial growth है उसको हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जो बैक्टीरिया हम सपोज कि हमें खाली इन्वायरमेंट मॉड्यूलेट करने से नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट, हम कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पर जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस है वो ब्रेक डाउन हो. तो इन्हीं पाइप से हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, बैक्टीरिया भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई फंजाई भी प्रोवाइड करा सकते हैं और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकते हैं, और क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, एयर प्रोवाइड करा सकते हैं. ये सब कुछ इन पाइप्स के थ्रू हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और जिससे कि जो बैक्टीरिया है वहां पर अच्छे से ग्रो करेगा और पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करेगा. दिस इज द सॉलिड फेज ट्रीटमेंट. इसमें हम कोई वाटर इन्वॉल्व नहीं करते हैं. और ये वाला ट्रीटमेंट किस किस तरह के वेस्ट के लिए यूज होता है, म्युनिसिपल वेस्ट के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, या एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट के लिए. Next, slurry phase bioremediation. In this kind of bioremediation, we make a slurry with water. हम यानी कि जितना जो solid substance है, जो contaminated है या polluted है, उसको हम पहले water के साथ mix करके एक slurry बना लेते हैं. फिर इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट जो अगर हमें चाहिए तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और इसे एक बायोरिएक्टर में डाल देते हैं. बायोरिएक्टर टैंक के अंदर डालने के बाद इसे सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं. किसके लिए ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, जो हमने बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं. यानी कि ये कोई टैंक है, हमने इसके अंदर अपना पॉल्यूटेड सब्सटेंस जो है वो भर दिया है. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसके लिए इसका जो एनवायरनमेंट है वाटर भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और अब इसका एनवायरनमेंट जो है वो हम कंट्रोल रखेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है उसके लिए हम सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे इस टैंक के अंदर. और इस तरह से क्या होगा कि जो टैंक के अंदर अब हमारा सब्सटेंस था जिसके अंदर पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे. Here are some important terms which we use in the bioremediation, like mycoremediation. Mycoremediation. What is the meaning of myco? Myco means fungi.
तो माइक्रो रिमेडिएशन क्या है? व्हेन वी डू द रिमेडिएशन बाय यूजिंग द फंजाई, दिस इज कॉल्ड माइक्रो रिमेडिएशन। यानी कि जब भी हम बायो रिमेडिएशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके किसी पॉल्यूटेड सब्सटेंस को इनॉक्यूअस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फंजाई है तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो रिमेडिएशन। यानी कि रिमेडिएशन के लिए जब फंजाई का यूज होगा तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो रिमेडिएशन। There are some fungi which we use for the bioremediation like Pleurotus, Aspergillus, Trichoderma. These are important fungi which we nowadays we are using in the treatment of polluted substances. Next is algal bioremediation. एल्गी का भी हम यूज कर सकते हैं बायोरिमेडिएशन के लिए, यानी कि पॉल्यूटेड सब्सटेंस के ब्रेकडाउन के लिए हम एल्गी का भी यूज कर सकते हैं। और कुछ फेमस एल्गी हैं जिनको हम यूज करते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ मरीन रेड एल्गी हैं जिनको हम बायोरिमेडिएशन के लिए ट्रीट करते हैं। आपने सुना होगा कि माइक्रो एल्गी राइटली नेम्ड एज वंडर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एल्गीज को हम वंडर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। दीज माइक्रो एल्गी आर कैपेबल टू डू द डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस इन वाटर लाइक क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। ये कुछ ऐसी माइक्रो एल्गीज हैं जो क्या करती हैं, बायोरिमेडिएशन करती हैं इन वाटर, और क्या करती हैं वहां पर अच्छे से फ्लोरिश कर जाती है वाटर की सरफेस पर, और वहां पर जितना भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू वो अब्सॉर्ब करते हैं। Phytoremediation, next term is phytoremediation. Phyto means plant. So when we are using the plant for the bioremediation, this is called phytoremediation, and this is also an eco-friendly approach. And nowadays we are using many plants for the bioremediation process and bacterial bioremediation. This is the most frequently used approach. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम बैक्टीरियल बायोरिमेडिएशन करते हैं, जिसमें हम कुछ एरोबिक बैक्टीरिया का भी यूज़ करते हैं और अनारोबिक बैक्टीरिया का भी यूज़ करते हैं। दो एरोबिक बैक्टीरिया को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रेफरेबल जो बैक्टीरिया है वो कौन से हैं? एरोबिक बैक्टीरिया है, इनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आई मेंशन्ड है, Pseudomonas, Actinobacter, Rotipara. These are important bacteria which we are using for the treatment of polluted substances. Some heavy metals, organic pollutants, इन सब के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। फंजाई और एल्गी भी हम इन सब के लिए यूज कर रहे हैं। सम एनारोबिक बैक्टीरिया वी आर ऑल्सो यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस, एंड द मेथानोसिटा and methanosarcina are important anaerobic microorganism which we are using for the treatment of polluted substances. So we can see here कि fungi, algae, plants and bacteria we are using for the treatment of polluted substances. When we are using fungi, this is called the mycoremediation. When we are using the algae, it is called algal bioremediation. When we are using plant for the bioremediation, it is called phytoremediation. And when we are using bacteria, it is called bacterial bioremediation. This slide is about the advantage of in situ bioremediation. इन सिटू बायोरिमेडिएशन की कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमें इसमें कॉस्ट थोड़ी कम पड़ जाती है हमें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पड़ेगी, हमें जो पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट पर नहीं लेकर जाना है। और इसके लिए हमें यही यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में कहना चाह रहे हैं कि हमें वहाँ पर क्या नहीं करना पड़ता है, सब कंटामिनेटेड सॉइल या वाटर को एक्सकेवेट नहीं करना पड़ता है। एंड दिस मेथड प्रोवाइड द वॉल्यूमेट्रिक ट्रीटमेंट एंड ट्रीटिंग बोथ डिजॉल्व एंड सॉलिड कंटामिनेंट। यानी कि इस मेथड में हमको ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है, साइट पर ही हम जितना भी डिजॉल्व पॉल्यूटेंट है और जितना भी सॉलिड कंटामिनेंट है, क्योंकि हम वहां पर कोई सेपरेशन तो कर नहीं रहे सॉलिड पॉल्यूटेंट का और डिजॉल्व पॉल्यूटेंट का, बस साइट पर कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायोरिमेडिएशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस इन सिटू बायोरिमेडिएशन के यही एडवांटेजेस हैं कि एक तो हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, दूसरा हमारे डिजॉल्व और सॉलिड कंटामिनेंट दोनों ही ट्रीट हो जाते हैं सेम टाइम पर, और इसके थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि इसके लिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं कि ट्रीटमेंट प्लांट सेट करें, देन उसे ट्रांसपोर्टेशन करें और फिर उसे वहां पर ले जाकर हम ट्रीट करें।
और इसके थ्रू इस इन सिटू बायोरिमेडिएशन में इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इनटू द कंप्लीटली इनटू इनोकस सब्सटेंसेस। ये हम इन सिटू बायोरिमेडिएशन में पॉसिबल है कि अगर हम उसे छोड़ दें लंबे टाइम तक तो वो कंप्लीटली डिग्रेड हो सकता है, कोई भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस कंप्लीटली डिग्रेड हो सकता है इनोकस सब्सटेंसेस में। So these are some advantages of bioremediation. And next slide, we will see the disadvantage of bioremediation. या लिमिटेशन, वी कैन से लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि हम हर तरह के सब्सटेंसेस को या हर तरह की कंटामिनेट साइट को ट्रीट नहीं कर सकते हैं इन सिटू बायोरिमेडिएशन से। क्यों ऐसा? क्योंकि जब अगर हम ऑन साइट ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सपोज कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के लिए अच्छे नहीं हैं या उस पर्टिकुलर एरिया के लिए अच्छे नहीं है, सेकेंडरी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में भी इट इज पॉसिबल कि वो ज्यादा हार्मफुल हो और उसकी वजह से जो आसपास की का एरिया है वो भी polluted हो जाए। तो sometime we cannot apply the on-site bioremediation. It may be harmful for the surroundings. और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी साइट होती है जहां पर ऑन साइट पॉसिबल नहीं है, तो हमें वहां से उठाना ही पड़ता है उस वेस्ट को और उसे ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर ही ट्रीट करना पड़ता है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कभी कभी मोर टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और मोबाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट हो सकता है उनका और वो आसपास की जो कम्युनिटी है वहाँ के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी ऑन साइट ट्रीटमेंट को प्रेफर नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी, थर्ड पॉइंट जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, when incorrectly applied injections well may become blocked by profuse microbial growth due to addition of nutrients, electron donor and electron acceptor। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि कई बार जब हम ऑन साइट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, यानी कि जो माइक्रोब्स वहां पर प्रेजेंट थे उनको हमने न्यूट्रिएंट का तो प्रोवाइड करा दिया, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि ये न्यूट्रिएंट वहां पर बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए ही यूज हो। कई बार ये ब्लॉक हो जाते हैं और जो दूसरे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो अनवांटेड कंडीशन है वो जनरेट हो जाती है कि जिन बैक्टीरिया को हम ग्रो कराना चाह रहे थे पॉल्यूटेड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो ना ग्रो करके दूसरे कर जाए। तो इस वजह से भी हम ये प्रॉब्लम एक रेज हो जाती है ऑन साइट बायोरिमेडिएशन में। हैवी मेटल्स को भी हम जो एक्टिविटी हैवी मेटल्स के लिए हमारा पॉसिबल है कि ये ऑन साइट बायोरिमेडिएशन इतना सूटेबल नहीं है। इंडिजिनस माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो वहाँ पर इंडिजिनस का मतलब है जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट थे उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं जो उस एरिया में हैवी मेटल्स है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमने बहुत सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया इनकी ग्रोथ के लिए, इंडिजिनस माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हमने सब कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह सब प्रोवाइड करा दिया, एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट है, तो ये इनकी ग्रोथ को होने नहीं देंगे और इनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, रिटार्ड करेंगे, जिसकी वजह से हम जो चाह रहे थे वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ओके, so this is all about the bioremediation and thank you.